Dear students, question number 5 of exercise 1.1 of the lesson mathematical logic was remaining. It was a small question. We will continue with that question and then go to the next topic. Okay, we will go do it very fast. It is simple. Okay, also it is important. Question number 1, it is for finding the negation. हम लोग को स्टेटमेंट का negation फाइंड आउट करना है. Write the negation of the following statements. Question number 1, तिरुपति is in आंध्र प्रदेश. So इसका negation कैसे लिखना है? We can write by including not in a particular or wherever it is necessary there we have to put not. Okay, जिधर जरूरत है उधर नॉट लिख के इसका नेगेशन लिख सकते हैं हम लोग. ओके, सो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. सो हम लोग नॉट इंक्लूड करना है. तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. सो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस लिखना है. बाय इंक्लूडिंग इन दिस प्लेस वी विल इंक्लूड व्हाट, नॉट. ओके, सो तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. सो आप लोग पूरा सेंटेंस लिखना है. तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. नाउ सेकेंड, 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. So it is 3 is not a root. So we have to write by removing this not. Okay, so इसका negation में not निकल जाएगा. So the negation is 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. I am repeating. I am not writing the answer here. It is simple. So you have to take down the answer. 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. That is in the answer or in the negation not will not be there. Okay. Now third one, root 2 is a rational number. So negation कैसा रहेगा? root 2 is not a rational number. root 2 is not a rational number. Okay. Next, fourth one, polygon ABCDE is a pentagon. Polygon ABCDE is a pentagon. So polygon ABCDE is not a pentagon is the negation by including not. So polygon ABCD is not a pentagon is the negation. Fifth one, 7 plus 3 greater than 5. 7 plus 3 not greater than 5. So इस कैसे लिखना है? not greater than 5. हम लोग not equal to कैसे लिखते? equal to लिख के उसको ऐसा काटते. ओके, सो not greater than 5 लिखते. 7 plus 3 greater than symbol लिख के ऐसा एक स्लैश. ओके, 5. ओके, ग्रेटर देन लिखना है ऐसा. सो अदर लेस देन लिखना है तो लेस देन लिखना है ऐसा. ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन. दिस इज नॉट लेस देन, दिस इज नॉट इक्वल टू. सो हमारा स्टेटमेंट 7 plus 3 greater than 5. वी विल राइट इसका नेगेशन कैसे लिखना है? 7 plus 3 not greater than 5. Okay, so these are the negations of these given statements. Okay, write down all the question and answers and practice daily. Okay, next topic is statement pattern. Statement pattern. What is statement pattern? Let us see. Let P, Q, R etc. be simple statements. हम लोग मालूम है कैसे represent करना है. statement कैसे represent करते हैं? Using the letters P, Q, R, small letters we are using. Okay, now a compound statement obtained from these simple statements by using one or more of the connectives and or implies and if and only if. ओके, सो ऐसा सिंबल स्टेटमेंट्स हम लोग ये जो कनेक्टिव्स इसमें से एक नहीं तो मोर देन वन और मोर देन वन यूज करके सिंबल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है. ऐसे कनेक्ट करके जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, स्टेटमेंट पैटर्न सिंपल भी होता है. सिंपल इन द सेंस सिर्फ एक कनेक्टिव यूज किया तो एक इजी वन मिलता है. P और Q, सिर्फ P और Q इज ए स्टेटमेंट पैटर्न ओनली. एंड इस तरह एग्जाम्पल दिया है, देखो P Q R
दीज 3 आर द सिंबल स्टेटमेंट्स. ओके, इसमें इसको ए पी क्यू आर को हम लोग ना प्राइम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, वो टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, सो ये जो कनेक्टिव्स और एंड इम्प्लाइज यूज किया है इधर, तो ये दो कनेक्टिव्स यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिला है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न. दूसरा देखो, पी और क्यू और आर, इधर और यूज किया है, 2 बार यूज किया है, पी क्यू आर कनेक्ट किया हुआ. दूसरा इधर एंड यूज किया है, इसके साथ ना नेगेशन भी यूज किया है. ओके, सो वी यूज नेगेशन ऑल्सो फॉर गेटिंग द स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, ये जो कनेक्टिव्स के साथ नेगेशन भी यूज करते हैं. ओके, स्टेटमेंट पैटर्न मिलने के लिए. सो ऐसे जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न. नाउ स्टेटमेंट पैटर्न लिखते वक्त उसका ट्रूथ टेबल भी बनाना पड़ेगा हम लोग को आगे जाके. उसके लिए एक 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लर्न करना है. देखो क्या है, पॉइंट नंबर 1, if the statement pattern consists of n component statements, n means it can be any number like 2, 3, 4 etc. बिकॉज एक स्टेटमेंट पैटर्न, एक छोटा सा स्टेटमेंट पैटर्न मिलने के लिए मिनिमम 2 मिलना चाहिए, 2 सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए. So n component statements P, Q, R, etc. each of which has the truth value T and F. इसका truth value T हो सकते, false भी हो सकते. Then the truth table of the statement pattern, truth table of the statement pattern obtained by these statements consists of how many rows? 2 raised to n rows. ओके, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, तभी अच्छा से समझेगा. देखते, कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी रोज, 2 raised to n. 2 raised to n मतलब इधर अगर सपोज P एंड Q आर द सिंबल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय एंड, सिंबल देखते हम लोग. इधर P और Q 2 स्टेटमेंट. ओके, 2 स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव और. सो 2 स्टेटमेंट अगर रहेगा तो उसमें कितना रो होना चाहिए, 2 raised to 2. 2 स्टेटमेंट से तो 2 raised to 2 आएगा, 2 raised to n के बदले 2 आएगा. ओके, 2 raised to 2. 2 raised to 2 कितना है, 4. मालूम है ना, P और Q, P and Q, P implies Q, P if and only if Q, ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स का ये ट्रूथ टेबल हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेने का. उसमें 4 रोज बनाया है फॉर गेटिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ T एंड F. 4 रोज बनाया है नीचे. ओके, ट्रूथ टेबल एक बार चेक करने का वापस, तभी अच्छा से समझेगा. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इफ ए स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ m connectives and n component statements. M connectives and n component statements. Then the truth table of the statement pattern consists of m plus n columns. रोज के बारे में ऊपर का फर्स्ट पॉइंट में बताया. इफ देयर आर n सिंपल कंपोनेंट्स और स्टेटमेंट्स, देन उसमें 2 raised to n रोज है. रोज मतलब हॉरिजॉन्टली हम लोग कैसे बनाते टेबल, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2, 3 ऐसा. कॉलम मतलब वर्टिकल लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बनाए उसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली रो बोलते. नाउ इसमें कितना कॉलम होगा, m कनेक्टिव्स और n कंपोनेंट स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें m plus n कॉलम रहेगा. उसमें सेम कनेक्टिव रिपीट होते तो उसको भी हम लोग काउंट करना है. इधर देखते, ये एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा अच्छा से समझेंगे. ओके, इधर देखो, एक स्टेटमेंट पैटर्न एग्जाम्पल बना है, P and R और Q and R. P and R और Q and R. ओके, इसमें कितना सिंबल स्टेटमेंट से देखो, P, Q, R 3 स्टेटमेंट से. ओके, कितना कनेक्टिव है देखो, एंड इधर यूज किया है और एंड
तीन तीन कनेक्टिव्स. सो 3 स्टेटमेंट्स एंड 3 कनेक्टिव्स. तो कितना है 3 + 3 6. तो कॉलम कितना हो गया 6. देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 कॉलम. ओके, इसका आंसर लिखा नहीं, हम लोग लिखेंगे अभी. नाउ रो कितना है देखो, ऐसा हॉरिजॉन्टली कितना है, कितना स्टेटमेंट से सिंपल PQR. PQR 3 स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट्स का नंबर ऑफ रोज कैसे बनाते हैं 2⁻3. अपना फॉर्मूला क्या है 2⁻n. n का वैल्यू इधर 2⁻3 है. 2⁻3 कितना है 8. तो 8 रोज एंड 3 + 3 6 कॉलम्स. 8 रोज है क्या देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बनाना है. इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद करना है. 3 स्टेटमेंट से PQR 3 स्टेटमेंट्स आएगा तो 8 रोज बनाया है. 8 रोज बनाना है. 8 रोज में हम लोग ट्रूथ वैल्यू ऑफ P लिखना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, ट्रूथ वैल्यू ऑफ R. लेकिन हम लोग सेम नहीं लिख सकते, सारे कॉम्बिनेशंस बनाना है अपने को, ट्रूथ वैल्यू का कॉम्बिनेशन. देखते हैं कैसे बनाना है. पहला स्टेटमेंट P का कैसे लिखना है हम लोग, फर्स्ट 4T लिखना है. फर्स्ट 4T. ओके, देन रिमेनिंग 4 8 रोज है ना, सो रिमेनिंग 4 वी विल राइट F 4T एंड 4F. ये देखो 4 ये T हो गया, A 4 F हो गया. ओके, ऐसे याद करना है आप लोग को. अभी नेक्स्ट Q लिखना है. Q कैसे लिखते, T F T F. तभी आप लोग सोचेंगे इधर सेम आ गया है, लेकिन हम लोग को और एक स्टेटमेंट है तभी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा. देखो इधर सेम है PQ, दो रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखते भी नहीं है. सेम आएगा तो एक ही बार आएगा, दो रिपीटेशन नहीं आता है. तो इधर 3 आगे, इसके लिए 8 रोज लिखते हैं हम लोग. अगर 2 ही स्टेटमेंट रहेगा तो 2 स्टेटमेंट रहेगा तो कितना है 2⁻2 4 ही रोज रहता है. 4 रोज में कैसे लिखते थे हम लोग, T F T F P का हो गया. Q का कैसा है TF ऐसा लिखते थे. इधर 8 रोज आ गया तो ऐसा लिखना है, नहीं तो रो हो जाएगा. ऐसा याद करेगा तो कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता. और देखो कैसा लिखना है, ऑल्टरनेट TF Now you can check any combination is repeated. No combination is repeated. Every combination is different. तो क्या करना है, P का 4 बार T 4 बार F, Q का 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F, R का TF. क्लियर. अभी हम लोग ये जो पैटर्न देखो, पैटर्न में पहला वाला ब्रैकेट देखते पहले P एंड R. सो हम लोग P एंड R का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. P एंड R देखो वैल्यूज मिस्टेक नहीं होना है, ऐसा फिंगर रखे कॉम्बिनेशन बनाना है. P एंड R, एंड यूज किया हुआ है तो एंड का ट्रूथ टेबल याद करना है. एंड में कैसे ट्रूथ वैल्यू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो इधर P एंड R का पहला कॉम्बिनेशन दोनों ट्रू है तो ट्रू. सेकेंड देखो दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब कॉम्बिनेशन फॉल्स है. सो TF में F आएगा, TT आएगा तो T, TF FT F ही आएगा. दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, ऐसा ही याद रखने का, बाकी सब कॉम्बिनेशन फॉल्स ही रहेगा. FT
एफ। सो हम लोग को एक कॉलम का आंसर मिल गया। अभी क्यू एंड आर, क्यू आर देखो, फिंगर रखो क्यू आर के इधर, क्यू आर। सो क्यू एंड ए, एंड कनेक्टिव इज एंड में क्या है, टी रहेगा तो टी, बाकी सब फॉल्स, टी। अभी देखो दूसरा कुछ टी रहेगा तो उधर टी लिख के रखो, फिर आंख बंद करके आप लोग एफ लिख सकते। इधर किधर बाकी ट्रू नहीं है तो बाकी सब क्या रहेगा, एफ। क्लियर। अभी हम लोग ये सब भूल जाओ, हो गया। पी क्यू आर अभी नहीं चाहिए। अभी क्या है देखो, पी एंड आर हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है, स्टेटमेंट पैटर्न कंपाउंड्स और स्टेटमेंट पैटर्न, और दिस इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। सो पी एंड आर मिल गया, क्यू एंड आर भी मिल गया। अभी ये दोनों ब्रैकेट को वापस कनेक्ट किया हुआ है और यूज करके। अभी और का याद करो, ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यू। और का कैसा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो अभी ये दोनों हम लोग और यूज करके, ये दोनों कॉलम और यूज करके कनेक्ट करना है। देखो दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। अभी देखो इधर दोनों फॉल्स इसमें है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स इधर आ रहा है तो एफ। ये भी दोनों फॉल्स, एफ। ये भी दोनों फॉल्स, एफ। बाकी सब क्या रहेगा, ट्रू। ऐसा लिखेगा तो मिस्टेक आएगा ही नहीं। ओके, क्लियर। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाना है, समझे? ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब सिमिलर और आइडेंटिकल और equal exactly equal word we can't use here. Equal word is used for, I have already told in the previous video, equal we can't use in this lesson because it is not written by an exact value. फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता, इसके लिए इक्वल यूज करने से बदले इक्विवेलेंस यूज करते हैं। ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं देखते हैं। Two or more statement patterns are said to be logically equivalent if and only if the truth values in their respective columns in the joint truth table are identical. मतलब ऐसे ट्रूथ टेबल बनाया है, टू डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स का ट्रूथ टेबल बनाया, एक ही ट्रूथ टेबल बनाया है कंबाइंड। उसमें दोनों साइड का स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम हम लोग लिखते, ट्रूथ टेबल में कॉलम लिखते, नीचे लिखते। तो वो कॉलम आइडेंटिकल रहेगा तो, सेम रहेगा तो, मतलब वो जो कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज जो मिलते हैं वो सेम रहेगा तो हम लोग वो दोनों पैटर्न को क्या बोल सकते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट पैटर्न्स। ओके, दो डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न हम लोग एक ही ट्रूथ टेबल में उसका ट्रूथ वैल्यूज बनाया तो, और ट्रूथ टेबल बनाया तो करस्पॉन्डिंग कॉलम का ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा तो उसको हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट बोल सकते। ओके, एग्जाम्पल, इसके पहले एक सिंबॉलिकली हाउ वी राइट इट एज, let A and B, capital letters A and B are two statement patterns which are logically equivalent. Equivalent symbol हम लोग ने ऑलरेडी यूज किया है प्रीवियस वीडियो में। हम लोग ने ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रूथ टेबल के बिना कैसे ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करते वो यूज किया है ऑलरेडी। इक्वल टू के बदले इक्विवेलेंट यूज किया है। ओके, तो हम लोग A एंड B अलग अलग पैटर्न है, वो इक्विवेलेंट है तो हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, using the truth table verify that negation or not P and Q is equivalent to negation P or negation Q. ओके, ये दोनों LHS और RHS दोनों पैटर्न इक्विवेलेंट लेके देखते हैं हम लोग यूजिंग द ट्रूथ टेबल। उसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल के लिए हम लोग क्या क्या करना है, पहले इसमें क्या क्या स्टेटमेंट, सिंबल स्टेटमेंट क्या क्या है देखो। पी क्यू, आर नहीं है, सिर्फ दो है, पी क्यू, इधर भी पी क्यू, तो हम लोग पी क्यू का कॉलम बनाया। फिर क्या क्या है देखो,
इधर सिंपल पार्ट इज नेगेशन P दिया है, नेगेशन Q भी है, तो हम लोग वो भी बनाया है, नेगेशन P नेगेशन Q। उसके बाद फिर एक सिंपल पार्ट आता है P एंड Q बनाया, फिर उसका नेगेशन है, ओके, नेगेशन ऑफ P एंड Q बनाया। अभी राइट हैंड साइड पूरा एक पैटर्न हो गया, सो नेगेशन P और नेगेशन Q, ओके। इसको हम लोग 1 2 3 4 नंबर भी दे दिया, तो इजी पड़ता है, नंबर ऐसे लिख के रखना है। फिर P का हम लोग दो ही पैटर्न, दो ही सिंबल स्टेटमेंट है, दो ही रहेगा तो कितना रो बनाना है, 1 2 3 4, कैसे मिला, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2, अगर दो स्टेटमेंट रहेगा तो 2, 2 रेज टू 2, 3 स्टेटमेंट रहेगा तो 2 रेज टू 3, ऐसा लिखना है। सो 2 रेज टू 2 4, 4 रोज, 1 2 3 4, ओके। तो अगर तो 4 रोज है तो पैटर्न, ये जो सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है, T T F F in the first column, T F T F in the second column, ओके। थर्ड वन देखो, नॉट P, नॉट P मतलब P का जस्ट ऑपोजिट, नॉट P, T का ऑपोजिट क्या हो गया, F, इधर भी T का F, मतलब FFTT हो गया, इधर TTFF लिखा, जस्ट ऑपोजिट FFTT। अभी Q का नेगेशन, Q का TFTF था, तो उसका उल्टा क्या होगा, FTFT, ओके, FTFT। अभी हम लोग ये पैटर्न बनाएंगे, P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q, P Q कॉलम देखो, ये दोनों कॉलम का, तो इधर से अपने को लिखना है P एंड Q, मालूम है दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सो ये फर्स्ट वाला भी ट्रू, फर्स्ट वाला सिर्फ T आएगा, बाकी सब फॉल्स। नेक्स्ट उसका नेगेशन लिखना है, P एंड Q का नेगेशन। सो ये सिर्फ एक कॉलम देखने का, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, TFFF, तो इधर T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा। नेक्स्ट नॉट P और नॉट Q, ये नॉट P और नॉट Q, इसको ना और यूज करके कनेक्ट करना है, और का क्या है, FF रहेगा तो F, बाकी सब T, तो बाकी सब T लिखना है, FF, बाकी सब में FF नहीं है, तो बाकी सब T T T T, ओके। अभी देखो ये जो लेफ्ट साइड का नॉट P एंड Q, राइट साइड का नॉट P और नॉट Q, इसको हम लोग 6 एंड 7 नंबर दे दिया है, लेफ्ट साइड का 6 एंड राइट साइड का 7। ये जो 6th एंड 7th कॉलम का ट्रूथ वैल्यू देखो, सिमिलर है ना, सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये जो दो कॉलम 6th कॉलम एंड 7th कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ये जो पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। हम लोग फाइनली कैसे कंक्लूड करना है, हियर in the truth table 6th and 7th columns are identical, therefore the given patterns are equivalent, okay। ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग लास्ट, क्लियर। सो these are the important points in this part। so बाकी next part is types of statement patterns, okay। types of statement पैटर्न्स में टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी सब करना है, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ओके। थैंक यू।